Hello everyone, I am Arpita Sharma, your mentor. Welcome back to Super Kalam. This session has been requested by majority of the students. I understand there are many students who are preparing for UPSC 2026 attempt, and there are students who are working professionals, there are college going students जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं. And there's this one burning question that they have. Ma'am, we have a lot of time, but we want to divide this time structurally so that we do not end up wasting our time in the month of December 2025, or we do not end up with fear or anxiety about our optional or revision or active recall by the end of 2025. क्योंकि टाइम जब बहुत होता है ना, तो वेस्ट भी हो जाता है. So do not worry at all. In this session, very structurally, I am going to give you a plan, comprehensive study plan, which you can tweak according to your own situation and circumstances. ऐसा नहीं है फिक्स्ड प्लान है, इसको फॉलो ही करना है. इस प्लान को इतना फ्लेक्सिबली मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप इसको ट्वीक कर सकते हो अपने सिचुएशन के हिसाब से. इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, जॉब के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो. इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, अगेन यू कैन डू दैट. फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, in that case also you can manage according to your own situation and circumstances, but the plan is foolproof. And I'm going to share this with you after my own experience of preparing for this exam and mentoring so many students in the past 6 years. लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. एक ना जर्नल अलग से प्रिपेयर करके रख लो फॉर द नेक्स्ट 1.5 year. There should be a little red or any other colored diary with you, a little diary where you need to note down the strategies, the plans, the timetable, etc. वो आपके माइंड को हेल्प करेगा to navigate through your preparation. Okay, let's get started. When we talk about UPSC examination, I understand there are different kind of students. We have working professionals, we have full time students, and we have college going students as well who are starting their preparation with basics. And सभी को कोई ना कोई डाउट रहता है because this exam is so dynamic in nature. What to cover, from where to cover becomes a struggle. First off, step number one always in any exam should be to understand your syllabus first. Because when you are preparing for any competitive level exam, you need to understand what the examiner is going to ask. आप अपने मन से तो प्रिपेयर कर नहीं सकते, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट रहेगा. एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द एग्जामिनर माइंडसेट? थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड थ्रू दी सिलेबस. यहीं से समझ आ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. So, the first step in any journey, or specifically in the journey of UPSC, should be download the syllabus, and it is available on UPSC's website. यूपीएससी की नोटिफिकेशन निकलती है, वही सिलेबस होता है उसी पीडीएफ में. एंड दिस इज दी सिलेबस. वी हैव प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस विद अस. प्रीलिम्स में वी हैव पेपर 1. वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम. तो अगर हम यहाँ पर देखें स्ट्रक्चर क्या है, वी हैव द प्रीलिम्स लेवल एंड मेंस लेवल, देन पर्सनालिटी इंटरव्यू राउंड होता है. प्रीलिम्स एंड मेंस में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तब आप इंटरव्यू राउंड में जाते हो. प्रीलिम्स इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड मेंस इज सब्जेक्टिव. प्रीलिम्स में आपको आंसर आइडेंटिफाई करना होता है, सिलेक्ट करना होता है आंसर, बिकॉज देर आर ऑप्शंस विच आर गिवन टू यू. बट इन मेंस आपको आंसर जनरेट करना होता है, बिकॉज ओनली द क्वेश्चन इज गिवन, यू हैव टू फ्रेम द आंसर. So both levels require different skill sets. Both levels require different mindsets, and both levels require different approach also. Yes, syllabus almost same होता है, बट काफी डिफरेंसेस सिलेबस को समझने में और सिलेबस की डेप्थ को समझने में रहते हैं. So I am going to help you understand from A to Z how to prepare for 2026. प्रीलिम्स के एग्जाम में आप देखोगे वी हैव पेपर 1 विच इज जीएस ओरिएंटेड, वेयर वी हैव करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट देयर इन प्रीलिम्स. इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, जर्नल इशू ऑन एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक भी आ जाता है इसके अंदर, बायोडाइवर्सिटी भी आ जाता है. एंड देन इन पेपर 2 विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर, फ्यू स्टूडेंट्स नो अबाउट इट. बहुत लोगों को जर्नी के बीच में याद आता है, अरे सी सैट तो क्वालिफाइंग था, ठीक है, तो इसलिए वो लोग अपना काफ़ी टाइम इसमें लगा देते हैं. तो इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर. आई एम नॉट सेइंग यू डोंट हैव टू पुट इन टाइम, यू हैव टू पुट इन टाइम. क्वालिफाइंग पेपर है भाई, ऐसे ही नहीं है. इट इज़ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट वन, बिकॉज इफ यू क्वालिफाई दिस ओनली योर पेपर 1, देन पेपर 1 विल बी चेक्ड. तो ये तो डील ब्रेकर और डील मेकर वाला पेपर है, इसको प्लीज इग्नोर मत करना. डू नॉट इग्नोर दिस, प्लीज राइट इट डाउन ऑन योर स्टडी डेस्क ऑल्सो. डू नॉट इग्नोर सी सैट. सी सैट में बेस्ट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी रहती है जब आप पीवाईक्यूज के थ्रू
सी सैट को प्रिपेयर करते हो, बिकॉज दैट वे यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ यूपीएससी एंड द माइंड सेट ऑफ द एग्जामिनर वाइल मेकिंग पेपर. वील अंडरस्टैंड हाउ टू कवर सी सैट, डोंट वरी. पहले सिलेबस देख लेते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस, अगेन हमारे पास क्वालिफाइंग पेपर होते हैं पहले, पेपर ए एंड पेपर बी, विच आर लैंग्वेज पेपर, इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश. अगेन आपको आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए. यू शुड नो बेसिक ग्रामर, बेसिक ऐसे राइटिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो कैब आपकी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. देन यू शुड नो हाउ टू प्रेस ए राइट, यू शुड नो हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द पैसेजेस. कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, उसको पढ़ के उसके बेसिस पे आंसर क्वेश्चन करने आने चाहिए. ऑल राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो ये पेपर भी क्वालिफाइंग होता है. रिमेंबर दैट इफ यू क्वालिफाई दिस पेपर ओनली, देन योर मेंस के रेस्ट ऑफ द पेपर्स विल बी चेक्ड. तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. Then we have the main syllabus. We all know about GS1, culture, history, modern, medieval, ancient, and then we have society also. इसमें हमारे society भी आ जाता है, इंडियन society, geography भी आ जाता है. पेपर 2 में we have polity, governance, justice, social justice and international relations. Then in paper 3 we have economics, biodiversity, environment, security, disaster management, science and tech. पेपर 4 में हमारे पास ethics, integrity, aptitude आता है. And then we have the essay paper also. हमारे पास essay paper भी है. And then we have optional paper which is divided into two parts. One subject you have to select and then two papers उसके होते हैं. So the first thing should be you understand the syllabus, you save the PYQs of at least last 5 to 6 years and you select your optional. अपना ऑप्शनल तो सेलेक्ट कर ही लो. स्टार्टिंग डेज में ही आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका ऑप्शनल क्या रहेगा, बिकॉज ऑप्शनल इज डील मेकर एंड डील ब्रेकर इन मेंस. ऐसे एथिक्स एंड ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं. क्वालिफाइड पेपर्स तो है ही हैं, बट वंस यू क्वालिफाई दोस लैंग्वेज पेपर्स, देन योर ऑप्शनल कैन मेक और ब्रेक यू. ठीक है. नाउ अगर आपको आपके मन पसंदीदा रैंक चाहिए तो ऑप्शनल पे ध्यान देना ही पड़ेगा. And optional should be based on two things: your graduation subject and your interest, plus how much of it is overlapping with GS also, basically is important. Because अगर आपके GS के साथ कोलाइड कर रहा है ऑप्शनल, देन आपकी हाफ प्रिपरेशन GS के साथ साथ हो जाती है ऑप्शनल की. ऑल राइट. सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. वी हैव आइडेंटिफाइड दी स्टार्टिंग स्टेजेस. हमने ऑप्शनल समझ लिया, वी हैव अंडरस्टूड द सिलेबस एंड वी हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो वी ऑल्सो नो हाउ यूपीएससी एग्जामिनर थिंक्स. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. सबसे पहले पूरे फेज को फ्रॉम लेट्स से दिसंबर 2024 आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. फ्रॉम दिसंबर 2024 टिल योर 2026 अटेम्प्ट, वी आर गोइंग टू डिवाइड द एंटायर ईयर इनटू फेजेस. हम कुछ फेजेस में डिवीजन करने वाले हैं. एंड विद एवरी फेज आई विल टेल यू व्हाट आर द डिलीवरेबल्स दैट वी आर गोइंग टू अचीव by the end of each phase. Okay, so that you have that mental clarity what we are going to achieve after completing this much part of the syllabus. ये बहुत कम लोगों को इस बात का एनालिसिस करने का टाइम मिलता है. बट इफ आई एम डूइंग दिस एनालिसिस फॉर यू, दैट मीन्स यू हैव टू यूटिलाइज इट विद फुल कॉन्फिडेंस. फेज नंबर 1 शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन फाउंडेशन बिल्डिंग. आपके फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के परस्पेक्टिव से फेज 1 शुरू होना चाहिए. फेज 1 विल स्टार्ट लेट्स से फ्रॉम दिसंबर. चलो मान लो दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैं इसको हटाती हूँ. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिसंबर 2024. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग हियर दिसंबर 2024 टिल जून 2025. वी आर गोइंग टू कवर द फेज 1. हाउ मेनी मंथ्स? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. दैट मीन्स हम अराउंड 7 मंथ्स का टाइम यहाँ पर लेने वाले हैं. वॉट वी आर गोइंग टू डू इन दिस 7 मंथ्स का टाइम पीरियड? वी आर गोइंग टू मेक श्योर, बिकॉज वी हैव द टाइम टिल 2026, टाइम तो है ना. तो हम दिसंबर से जून वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट आर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज स्ट्रॉन्ग. आर फोकस, entire focus should be towards strengthening our conceptual clarity, nothing else. Because once your conceptual clarity is strong, then any time, matlab aapne, you must have seen and heard students who are telling that we have cleared prelims a lot of times again and again. Why? Because conceptual clarity is strong on their part. That is why they are able to clear prelims again and again. So we are going to master the static portion. तो हमें शुरू कहाँ से करना है? We have to first identify the core subjects. What are the core subjects? Polity, history, economy, geography, science and tech. ये आपके core subjects होते हैं which are common both in prelims and in mains. Geography में ही environment ecology भी आ जाता है. Okay? So we have identified the core subjects. Now, apart from this, in these 7 months, we also need to focus on ethics, because in ethics there are two papers, paper A and paper B.
पार्ट ए में क्या आता है, आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं. पार्ट बी इज ट्रिकी, वी हैव केस स्टडीज, एंड दिस इज वेयर यूपीएससी कैन मेक और ब्रेक यू. केस स्टडीज कैन नॉट बी रोट लर्नड, आप इसको रट नहीं सकते. इट डिपेंड्स ऑन योर एनालिटिकल स्किल्स. आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज किया जाता है एथिक्स के अंदर, टेस्ट किया जाता है. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स. ओके, फॉर दिस वी विल स्टार्ट विद एनसीईआरटीज. तो अगर हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, वी नो क्लास 11 से क्लास 12 की एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट. हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगेन क्लास 9 से क्लास 12 की एनसीईआरटीज. इकोनॉमी, आई वुड सजेस्ट तमिलनाडु की 11 12 की बुक्स. ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हेयर अगेन क्लास 9 टू क्लास 12 एनसीईआरटी. साइंस एंड टेक क्लास 11 से क्लास 12 की एनसीईआरटी, बट नॉट ऑल द चैप्टर्स. If we go to our focus batch, na, I'll show you. If we go to our focus batch, over here you can see that in our focus batch we are covering science and technology for the students, taking the base of NCRTs, basic fundamental concepts, and specific chapters from those NCRTs along with Science Reporter magazine and current affairs. I'll come back to the focus batch very soon, don't worry, but I'm trying to just explain कि हमें कहाँ focus करना है, ठीक है? So we'll start with basic NCRTs and basic books. For example, for polity we have M Lakshmikant book. For history, modern history में we have Spectrum book, right? Medieval and ancient history तो NCRT से ही cover होती है, right? Similarly, economics के लिए आपके पास संजीव वर्मा सर की बुक होगी या रमेश सिंह सर की बुक होगी, right? आप वहाँ से cover करेंगे. But these 7 months have to be built, or you can say used to build the conceptual clarity. Now with this you have to maintain a daily habit tracker. Daily habit tracker क्या होता है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है. Now students have this doubt, ma'am, should we be reading newspaper and making notes simultaneously from the newspaper itself? क्या ऐसे करना चाहिए कि न्यूज़पेपर से नोट्स भी बनाए? आई वुड सजेस्ट कि आप सुपर कलाम की करंट अफेयर की मैगजीन्स पे रिलाई कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ डेली मेकिंग नोट्स यू कैन रिलाई ऑन सुपर कलाम्स मैगजीन. कैन सी on Super Kalam's dashboard. I've given the link in the description box also. All the monthly magazines are available. They are uploaded over here. Okay, तो आप मैगजीन से कवर कर सकते हो. बट इन द मैगजीन इटसेल्फ देर आर स्पेसेस गिवन इन द साइट्स जहां पर आप नोट्स अपने पॉइंट स्क्रिबल कर सकते हो. You can use those small mind maps, your small notes for active recall. In our magazine also we have given small mind maps. So that is why I'm saying ki our magazine are more than enough to cover the current affairs. There is no need to separately make notes from the current affairs if you have our magazines, current affair magazines. And then within this time period what you have to do is, after covering each and every chapter, practice MCQs on it. ये नहीं कि पूरा सब्जेक्ट कवर करने के बाद ही टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, नहीं. After covering each and every concept in the chapter, practice MCQs with Super Kalam. At least attempt one mains PYQ based on that chapter or that topic that you have covered and get it evaluated by Super Kalam. इससे आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड डेली मॉक एमसीक्यूज प्रैक्टिस होती जाएगी in the 7 months. So after the end of 7 months, you will be in a position to write answers. You will be in a position to complete the static syllabus one time. एक बार तो आपका स्टैटिक सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा. इफ यू गो टू आवर फोकस बैच, ये हमारे फोकस बैच का टाइम टेबल है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 December. दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है फॉर 2026. बाय 1 June द एंटायर एथिक्स सिलेबस एंड अदर कोर सब्जेक्ट्स विल बी फिनिश्ड. मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो इंटायर प्रीलिम सिलेबस आपका 4 May तक आराम से कवर हो जाएगा फोकस बैच के अंदर. तो दिस इज द आइडियल स्ट्रैटेजी दैट यू शुड हैव. अगर आप जाओगे फोकस बैच के पेज पर, लैंडिंग पेज पे, दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल इज ऑल्सो गिवन ओवर देयर. Just try to go and check for yourself how you can also utilize this timetable for your own preparation. Now coming on to the next phase, which is phase number 2. Phase number 2 will be advanced integration. Abhi tak we were focusing mainly on prelims, and that too we were focusing more on किस पे फोकस कर रहे थे हम, conceptual understanding पे फोकस कर रहे थे. Now we need to go deeper into mains. So here comes the role that optional plays. फ्रॉम जुलाई 2025, अब ये जुलाई से शुरू होगा टाइम, टिल जनवरी 2026. दैट मीन्स वी नीड टू स्टार्ट फोकसिंग नाउ ऑन मोर टुवर्ड्स मेंस प्रेपरेशन. अभी हमने 7 महीने यूटिलाइज कर लिए अपने प्रीलिम्स के लिए. नेक्स्ट फ्यू मंथ्स विल बी यूटिलाइजिंग फॉर मेंस. सो जुलाई,
August, September, October, November, December, Jan. Next 7 months we'll be focusing on mains, but we will not forget prelims. Simultaneously prelims जाएगा, but heavy focus mains पे रहेगा. Here you have to utilize at least in out of these 7 months, 4 to 5 months on your optional. Now that is the best part. You have decided onto your optional on day one itself. आपने एक हफ्ता इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट 1 वीक टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, टू गो थ्रू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, गो थ्रू देयर सिलेबस, सी हाउ रिसोर्सेज आर इजीली अवेलेबल और नॉट. इग्नू का मटेरियल देखो अवेलेबल है या नहीं. इग्नू का मटेरियल बेस्ट होता है ऑप्शनल के लिए, कुछ ऑप्शनल्स के लिए. गो थ्रू इट, फाइनलाइज योर ऑप्शनल, देन यू हैव टू यूटिलाइज स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई. 4 से 5 महीने आपके ऑप्शनल पे इन्वेस्टेड होने चाहिए. यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस वंस ऑफ योर ऑप्शनल एंड साइमल्टेनियसली एक एक टॉपिक कवर होने के बाद पीवाईक्यूज देखते रहना. साइमल्टेनियस कवरेज ऑफ पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन नॉट ओवरलुक इट. इन योर प्रेपरेशन यू हैव टू ऑल्सो इनकॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप बजट रिलीज हो जाता है आपका, बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है आपको. फेब्रवरी में आपका 2026 का आएगा, बट जैन का आपको 2025 का भी पढ़ना पड़ेगा बजट. 25 का इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना पड़ेगा. यू हैव टू फोकस मोर ऑन मेंस मटेरियल्स. आपके नोट्स मेंस ओरिएंटेड बनने चाहिए इस टाइम पीरियड के अंदर. ओके ये पॉइंट याद रखना है. वॉट एवर नोट्स यू आर मेकिंग, मेक श्योर यू आर जॉटिंग डाउन इन माइंड मैप फॉर्मेट. जितना ज्यादा माइंड मैप फॉर्मेट में आपके नोट्स तैयार होंगे, डायग्रामेटिक वे में नोट्स तैयार होंगे, उतना ज्यादा आपके लिए एक्टिव रिकॉल में मदद आपको मिलेगी. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन योर एक्टिव रिकॉल. ओके देन यू हैव टू रिवाइज योर कंसोलिडेटेड नोट्स. नोट्स ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आपका स्टैटिक एंड करंट दोनों कवर्ड हो. फॉर एग्जाम्पल इन दिस आर्टिकल इट इज अ करंट ओरिएंटेड आर्टिकल. इंडिया एंड नाइजीरिया, रिसेंट आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिटेड नाइजीरिया. Okay, but again static portion is involved. India and Nigeria's relationship. Then Nigeria का नाम नाइजीरिया क्यों है? Because there is a river called Niger on which the name has been kept. Largest tributary of river Niger क्या है? Benue. Okay, what is the official language of Nigeria? English. Local languages क्या है? Igbo, Ijo. Local languages के ऊपर prelims में काफी question पूछे जाते हैं. Where is Nigeria located? Western coast of Africa में located है. What is this Grand Commander of Order of Niger award which has been given to our honorable Prime Minister? So this is how you have to make notes जिसके अंदर mains and prelims के perspective से आपके notes compiled हो. And daily answer writing is must. ये practice must है. For example, in our focus batch, my focus is that my students write one answer every day. एक आंसर मैं रोज लिखवाती हूँ. For example, today in focus batch we have studied, let's say, a topic on preamble. Then I make them practice MCQs, 10 MCQs on preamble and one mains oriented question on preamble. तो ये देखो मैंने चेक किया था अभी रिसेंट, और ये चेक करने के बाद आई हैव गिवन डिटेल्ड फीडबैक ऑल्सो. इस तरीके से ये देखो डिटेल्ड फीडबैक कि अंडरस्टैंडिंग कहीं वीक है, क्या इंटरलिंकेज होना चाहिए था, क्या चीज मिस कर दी है. दिस इज हाउ आई गो अहेड इन द फोकस बैच. एंड व्हेन वी हैव आवर लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन इन द बैच, तो वहां पर जितने भी बच्चों के डाउट्स होते हैं वो मैं लाइव सॉल्व कर देती हूँ. इफ द स्टूडेंट वांट्स टू कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप, अगेन इन द फोकस बैच दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल. वन ऑन वन व्हाट्सएप की मेंटरशिप की फैसिलिटी फोकस बैच में अवेलेबल है. तो वेन एवर स्टूडेंट्स हैव एनी डाउट दे रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई इंस्टेंटली सॉल्व देयर डाउट्स. तो एक वो भी इंपॉर्टेंट बात हो गई, बिकॉज मेल के थ्रू डाउट्स इंस्टेंटली सॉल्व नहीं हो पाते. सो आई थॉट कि वाई नॉट स्टार्ट अ व्हाट्सएप मेंटरशिप विद दी बैच इटसेल्फ. तो अगर डाउट्स हाथ के हाथ आते हैं वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएंगे, अलॉन्ग विद द डाउट रेजोल्यूशन लेक्चर ऑल्सो विच वी टेक्स प्लेस ऑन एवरी सैटरडे. ओके सो दिस इज समथिंग दैट इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन. अगर आपके पास आपका मेंटर है, आपका गाइड है, तो दिस पर्टिकुलर थिंग रियली हेल्प्स एंड गिव्स एडवांटेज टू द स्टूडेंट, गिव्स एन अपर हैंड इन देयर प्रिपरेशन. ओके तो हमको फोकस क्या करना है, जुलाई 2025 से जैन 2026 तक वी हैव टू कंप्लीट वंस आर ऑप्शनल. वी हैव टू मेक श्योर आवर नोट्स आर कंसोलिडेटेड इन सच वे कि प्री और मेंस दोनों के एक्टिव रिकॉल नोट्स बने हों. वी हैव टू डेली राइट वन आंसर. वी हैव टू हैव आवर मेंटर विद अस. इफ नॉट मी, सुपर कलाम इज योर मेंटर. आप कभी भी जाके सुपर कलाम पर अपने आंसर को 60 सेकेंड्स में इवेल्युएट करवा सकते हो. आपको टेस्ट देने भी शुरू करने होंगे. वैसे तो यू हैव टू प्रैक्टिकली स्टार्ट विद पीवाईक्यूज जो आपने यहीं से शुरू कर दिया है,
From December onwards, whatever concept you study, you practice MCQs on it on Super Kalam. बट फुल लेंथ मॉक्स लगाने शुरू करने पड़ेंगे प्रिलिम्स के, सेक्शनल मॉक्स देने शुरू करने पड़ेंगे आपको मेंस के बाय द एंड ऑफ 2025, नॉट फ्रॉम द स्टार्ट, जुलाई मंथ के स्टार्ट से नहीं, बाय द एंड ऑफ 2025. सो बाय द एंड ऑफ जैन 2026 डिलीवरेबल्स क्या होंगे? यू विल हैव कंप्लीट होल्ड ओवर योर ऑप्शनल एंड यू विल हैव स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स एज वेल. नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली सीसैट को नहीं भूलना है. Make sure that on every weekend at least you are practicing PYQs of CSAT. On your dashboard on Super Kalam, you have CSAT lectures also. Make sure you watch those classes. On our YouTube channel also there is a playlist on CSAT. CSAT की playlist को use करके pre-YQs के साथ integrate करके आप अपनी practice जारी रखेंगे. And also analyze when you are practicing PYQs. Are you more strong towards maths or comprehension or reasoning? जहां पर आप ज्यादा स्ट्रांग हो उस स्ट्रांग पार्ट पर आपको प्ले करना है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक. नाउ कमिंग ऑन टुवर्ड्स द टाइम ऑफ February 2026. नाउ दिस इज द मंथ व्हेन योर एग्जाम फॉर्म इज फिल्ड. फेब्रवरी में ही एग्जाम फॉर्म भरा जाता है. सो फ्रॉम Feb to May 2026 we need to make sure that our focus is now completely inclined towards prelims. अब पूरा फोकस प्रिलिम्स पे लेकर आना है. ये है अपना phase 3 prelims oriented. Here we have to start our revision. We have to start with our mock test. We have to make sure that our notes are made on high yielding topics जैसे कि important places in news, important wildlife sanctuaries, national parks, protected areas, species in news, important schemes, Supreme Court judgments, amendments, important fundamental rights in news. ये आपको पढ़ने जरूर हैं. इनके ऊपर तो कम से कम आपके नोट्स तैयार होने ही चाहिए यहाँ तक. और नहीं है तो ये पीरियड में आपको तैयार कर लेने चाहिए. In the month of Feb, make sure this is in a consolidated way prepared. And whenever you are giving mocks in this month, इस पीरियड में आप दे रहे हो, एटलीस्ट 50 to 60% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए मॉक्स के अंदर. इफ यू गो टू सुपर कलाम, अगर आप सुपर कलाम पर जाते हो, आई शो यू. इफ यू गो टू सुपर कलाम, माई प्रोग्रेस में क्लिक करोगे, यहाँ आपको आपकी एक्यूरेसी भी दिख जाएगी साइमल्टेनियसली. So make sure that after solving MCQs here, you note down your accuracy percentage as well. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. सो इन phase 3 लेजर फोकस शुड बी टुवर्ड्स प्रिलिम्स. सीसैट कम से कम 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करना ही करना है. ये मेक श्योर करना, ये अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए. इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ फोकस बैच, यू हैव टू मेंटेन योर ओन अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट. इन माय फोकस बैच में एक अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट बनाकर रखती हूँ. एंड नाउ द फेज नंबर 4, दैट इज द अल्टीमेट फेज. June 2026 to September 2026. This is the period which is highly important. यहाँ पर full length mocks देने शुरू करने हैं आप लोगों को. This is for mains because now prelims is over. आपके मई के महीने में, मई एंड में prelims हो जाता है over. उसके बाद आपका शुरू होता है मेंस का टेस्ट, मेंस का पीरियड. Write 3 answers daily because this is the play of speed and accuracy. आप कितना स्पीडी वे में पूरा पेपर सॉल्व करते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हर पेपर के बाद डिटरमाइन होगा. सो फोकस ऑन essay राइटिंग, फोकस ऑन राइटिंग 3 आंसर्स डेली. ऑल्टरनेटिव डेज पे आप एथिक्स के केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो. वीकेंड्स पे आप ऐसे राइटिंग कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि रोज ही ऐसे लिखना है. ऑन सैटरडे संडेज यू कैन राइट एसेज, बट मेक श्योर यू आर राइटिंग एज मच एज पॉसिबल. You are revising because notes तो आपके इसी फेज में तैयार हो गए थे. In this phase your consolidated notes were ready for mains. So now what you have to do is write and revise. यही 2 चीजें करनी है अब आपको. इस पे फोकस करना है आप लोगों को. एंड देन दिसंबर से अप्रैल का पीरियड, 2027 तक का पीरियड, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यहाँ तक आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच चुके होंगे. अब यहाँ पर सारा प्ले है. जो आपने पढ़ा उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, थ्रू योर पर्सनैलिटी, थ्रू योर स्पीच, थ्रू योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. सो दिस इज अ होलिस्टिक प्लान for 2026. And if you are preparing for 2026, we are also starting our focus batch from 2nd December onwards. If you are interested, this is the batch
where you will not just get daily targets, daily मतलब मैंने आपको आप 7 मंथ्स का ब्रेक डाउन करके प्लान बताया, बट उन 7 मंथ्स में हर दिन आपको कैसे टारगेट अचीव करना है, हर दिन अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करनी है, वो मेरी जिम्मेदारी और विमल सर की जिम्मेदारी होगी फोकस बैच के अंदर आपके लिए, where you will get daily discipline, daily targets, personal mentorship, accuracy reports, weekly progress reports, weekend के टेस्ट होंगे, I will be evaluating your answers personally, and everything starting from 2nd December. The link to this batch is also given in the description box. आप चाहो तो खुद चेकआउट भी कर सकते हो. Entire timetable is also present. The feedback of all the other students who were enrolled in the previous focus batches is also given. So this was all for today everyone. I hope you enjoyed this session. कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू फोकस बैच देन यू कैन आस्क मी at ask@kalam.in. This is the mail ID. Thank you so much everyone.